Hello guys, good morning all of you. So today we will start second unit of class 6 of English reader. What we will study in second unit? We will read about animals. How we start? Choose the right answer. So you have to, before we have started the second unit, 2 chapters, that is unforgettable Salim Ali. Before we started, we have to do this part of unit 2, animals. Choose the right answer. You have to choose the right answer from here. A penguin is a reptile, a penguin is a bird, or penguin is invertebrate. What do you think about penguin? Penguin is a kind of what? It's a reptile? No, it can't be a reptile. It is invertebrate? No, it is a bird. So this is the correct option. Birds have hairs, birds have scales, birds have wings. Birds के क्या होते हैं? Hairs, scales और wings. इनके wings होते हैं जिनसे ये they can fly easily, they can sit at a one place and they can flying easily, they can move one place to another place, one tree to another tree, they can fly high. Birds do not have feathers, birds have feathers, birds have fur. क्या होते हैं birds के? feathers नहीं होते, बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता, birds के feathers ही होते हैं, fur नहीं होते, feathers होते हैं. okay, they are called feathers. Now next, birds are oviparous और viviparous. birds क्या होते हैं? oviparous होते हैं या viviparous होते हैं? मतलब oviparous होते हैं वो जो they can lay eggs with little or no embryonic development. they can lay eggs, ये ये eggs देते हैं, they can lay eggs with little or without embryonic development. ठीक है, not just like cow and dog, it's like oviparous, these lay eggs. okay, birds have vertebrate animal or invertebrate animal. मतलब vertebrate animal are those animal which have backbone, you can say मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, whatever you want to say, and invertebrate they don't have. So birds are the animals which have that part, that your backbone. okay, so they are vertebrate animal. okay, after this we will start about the chapter. Today we will start your English literature 3rd chapter of 2nd unit, Unforgettable Salim Ali. We will read about Salim Ali. Who was Salim Ali? Salim Ali was a bird watcher and an environmentalist, टीचर, राइटर, एक्सप्लोरर. मतलब उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था. वो एक बर्ड वॉचर थे, उन्हें बर्ड्स की स्टडी करना, पक्षी विज्ञान जो होता है उसमें बहुत इंटरेस्ट था. ही वॉज अ बर्ड वॉचर और बहुत एक्सप्लोर करते थे वो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था. एक टीचर भी थे और एक राइटर भी थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी. एनवायरमेंटलिस्ट थे. ही हेल्ड 3 ऑनरी डॉक्टरेट्स, पद्म विभूषण अवार्ड, उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था. ठीक है. A 10-year-old Salim Ali found a strange looking sparrow with a yellow streak below its neck. एक 10 साल के थे तब वो उन्हें क्या हुआ, एक स्पैरो दिखी जिसकी कैसी स्ट्रिक थी, येलो स्ट्रिक. ठीक है, एक चौच टाइप थी येलो कलर की, बिलो इट्स नेक, नेक के पीछे. द सेक्रेटरी एट द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आइडेंटिफाई इट एज अ येलो थ्रोटेड स्पैरो. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS एक संस्था होती है जहां पर इसे किस तरीके से स्पैरो को माना जाता है, येलो थ्रोटेड स्पैरो. ठीक है, इसका एक अलग से
आइडेंटिफिकेशन है वहां पे. शॉट द बॉय द सोसाइटीज वास्ट स्टफ बर्ड कलेक्शन और स्ट्रक ही रिमेन्ड फैसिनेटेड विद बर्ड्स फॉर लाइफ. सब लोग वो वहां पर लेकर गए उसको, बर्ड को, और सब लोग देख के इतने शॉक्ड, सब लोग इतने ऑस्ट्रक हो गए, लाइक मतलब कि इतना इम्प्रेस हो गए उनके उस बर्ड को ले जाने से. ऑस्ट्रक मीन्स वेरी इम्प्रेस्ड. या ग्रेट इंप्रेशन पड़ना किसी का. जैसे हम कहीं पे कुछ अच्छा सा करते हैं तो उस चीज को देख के सब लोगों को बहुत इंप्रेशन पड़ता है. तो ऐसे ही वो जब अपनी BNHS सोसाइटी में वहां पर इसको ले गए बर्ड को, तो सब लोगों को देखकर लगा कि अरे वाह, ये तो बड़े डिफरेंट टाइप की बर्ड लाए हैं. सलीम अली वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन द स्कूल. वो हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट थे. उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था 10 साल तक. द नेक्स्ट 10 years इन बर्मा एज अ पार्टनर हिज ब्रदर्स टिम्बर एंड वॉल्फ्रेम. अपने भाई के साथ उन्होंने टिम्बर मतलब जो लकड़ी वकड़ी का वुड का काम होता है, और वॉल्फ्रेम बिजनेस लाइक जो आयरन स्टील एंड ऑल का काम होता है, उसमें उन्होंने उनका साथ दिया. Most of the time in the Burma he would be observing birds and wildlife. इस सब के बावजूद भी वो क्या करते थे, वो हमेशा से बर्ड्स में इंटरेस्ट रखते थे, वाइल्ड लाइफ में. ये सब करने के बाद भी वो इंटरेस्ट उनका सारा का सारा कहाँ होता था कि वो बर्ड्स में और वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते थे. When the business collapsed, Salim Ali came back and got a job as a guide lecturer in Mumbai Prince of Wales Museum in 1927. जब उनका बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस एंड हो गया, मतलब बिजनेस नहीं चला कह लो, तो सलीम अली वापस आ गए और उन्होंने एक जॉब हासिल कर ली. कहाँ पर? एज अ गाइड लेक्चर इन मुंबई, मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स. ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में 1927 में. 2 साल बाद क्या हुआ? आफ्टर 2 years ही डिसाइडेड टू स्टडी ऑर्निथोलॉजी एट द बर्लिन यूनिवर्सिटी जूलॉजिकल म्यूजियम. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सोचा कि मेरे को जिस चीज में इंटरेस्ट है, उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट था? ऑर्निथोलॉजी मतलब आपका जीव विज्ञान, आप कह सकते हो पक्षी विज्ञान. ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड ऑल. ठीक है, उन्हें इंटरेस्ट था इस चीज में, तो उन्होंने सोचा कि बर्लिन यूनिवर्सिटी में मैं ऐसा कुछ करता हूं. व्हेन सलीम अली रिटर्न टू मुंबई अ ईयर लेटर, 1 साल बाद जब वो मुंबई वापस आए, हिज गाइड लेक्चर पोस्ट हैज बीन अबॉलिश्ड. वो जॉब छोड़ के चले गए थे, तो उनकी जो जॉब थी अब उन्हें नहीं मिली. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक बार जॉब छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोबारा भी हमें वही सेम जॉब मिल जाए, तो उन्हें वो जॉब दोबारा नहीं मिली. There was no chance. अब क्या है आगे? There was no chance of working for the government either because he did not have a college degree. देखो, उनके पास कोई डिग्री तो थी नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉलेज अपना बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया था. हमने ये चीज पहले देखी थी. तो अब उनको क्या है कि अब वो नहीं कर सकते थे वो जॉब. क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी. ठीक है, वो सिर्फ अपनी काबिलियत के बेसिस पे उन्होंने जॉब ले ली थी, पर उनके पास डिग्री नहीं थी, तो इसलिए वो दोबारा उस जॉब को नहीं कर सकते थे. ही डिड नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री. उनके पास एक कॉलेज डिग्री नहीं थी. सलीम्स की जो वाइफ थी तहमिना, ठीक है, उनकी वाइफ का नेम क्या था? तहमिना. तो वो क्या कहती थी? फैमिली ओन्ड अ स्मॉल कॉटेज इन किथिम. किहिम में उनकी एक कॉटेज थी, अ कोस्टल विलेज टू द साउथ ऑफ मुंबई. ठीक है, मुंबई में द यंग कपल मूव देयर. किहिम वाज ग्रीन एंड फुल ऑफ बर्ड्स. वहां पर इतनी सारी बर्ड्स थी प्यारी प्यारी कि उनको वहां बहुत अच्छा लगता था. दिस केप्ट सलीम अली ऑक्यूपाइड विद हिज फेवरेट हॉबी. भाई हमें क्या काम करना चाहिए? हमेशा वो जॉब करनी चाहिए जिसमें हमें मजा आए. ठीक है, तो उनको क्या अच्छा लगता था? उनको ना बर्ड्स को वॉच करना, बर्ड्स के बारे में एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, उन्हें वो पसंद था. बर्ड्स लाइफ में इंटरेस्ट था, तो उन्हें वहां और भी मजा आ रहा था, क्योंकि वहां पर इतना अच्छा माहौल था उस विलेज में जो उनकी वाइफ का था. वहां पर बहुत सारी बर्ड्स थी और बहुत ग्रीनरी थी. ठीक है, तो तहमीना ने कहा कि डोंट टेक अ जॉब, मत करो जॉब. जबकि उनकी कंडीशन फाइनेंशियली अच्छी नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने कहा कि मत करो जॉब. अगर आप उसे एंजॉय नहीं करते, इफ यू कांट एंजॉय इट, डोंट डू इट, मत करो. In 1930, Salim Ali went to the
BNHS with a proposal to study Indian birds systematically. उसके बाद वो कहाँ चले गए? 1930 में BNHS में चले गए और वहाँ उन्होंने सोचा कि हम इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ, जिस चीज़ के बारे में मुझे इंटरेस्ट है उसी के बारे में मैं पढ़ता हूँ, विच हैड बीन नेवर बीन डन बिफोर. इससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था. ही डिड नॉट वांट अ सैलरी. उन्हें सैलरी नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ छोटे मोटे खर्चे, जो वो ना ये काम इंटरेस्ट से करते थे. वो ये काम ऐसे नहीं करते थे एज अ जॉब, जैसे हम एज अ जॉब कहीं पर MNCs में वर्क करते हैं तो हमें क्या चाहिए कि 50,000 सैलरी हो, 1 लाख सैलरी हो. बट वो इस काम को इंजॉय करते थे. तो वो ना चाहते थे कि जो मेरे छोटे मोटे खर्चे हैं वो निकल जाएं, मुझे लंबी चौड़ी सैलरी नहीं चाहिए. तो उन्होंने ऑर्थोलॉजिकल सर्वेस करे. फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स ही रोम्ड द सब कॉन्टिनेंट, और वो पूरे कॉन्टिनेंट्स में घूमे, स्टडिंग बर्ड्स फ्रॉम कच्छ टू सिक्किम. ठीक है, कच्छ से लेके सिक्किम तक उन्होंने सारी स्टडी करी, अफगानिस्तान तो केरला, वीविंग हिस्ट्री, इकोलॉजी, जियोग्राफी इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट. बर्ड्स और जो हैबिटेट मतलब जो उनका रहने का स्थान होता है, ठीक है, प्लेस ऑफ लिविंग, जो बर्ड्स जहाँ रहती हैं उस सब के बारे में उन्होंने स्टडी करी. ठीक है. इन 1941 ही पब्लिश द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स. उसके बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश करी, द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स, द फर्स्ट ऑफ मैनी मोर बुक्स टू कम. इट वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस एंड इट्स रॉयल्टीज इनेबल्ड हिम टू रिपे हिज ओल्ड बिजनेस डेट्स. जो उनका पिछले बिजनेस में लॉस नहीं हुआ था, उस लॉस की भी भरपाई हो गई. कैसे हो गई? उन्होंने ये बुक लिखी, ये बुक पब्लिश हुई, इसमें रॉयल्टी आई. जब हम बुक देते हैं किसी को, जब हम बुक सेल करने के लिए बुक सेलर को देते हैं तो वो हमें क्या करता है, इन रिटर्न हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हमें रॉयल्टी मिलती है. ठीक है, पर बुक हमें पैसा मिलता है. तो उस रॉयल्टी से उन्होंने अपने जो ओल्ड डेट्स थे वो भी सारे चुका दिए. बाय 1960 द मैन हु हैड बीन वंस बीन रिजेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट जॉब. जिस इंसान को एक गवर्नमेंट जॉब से रिजेक्शन मिल गया था कि आपके पास डिग्री नहीं है, आज वो क्या कर रहे थे, आज वो PhD स्कॉलर्स, जो लोग PhD कर रहे हैं उनको वो गाइड कर रहे थे बिना डिग्री होने के बावजूद. क्यों? क्योंकि वो थे इतने अच्छे ना उस चीज में. सलीम अली helped the development of ornithology in India. Although recognition came late, he received several honorary doctorates. ठीक है, उनको रिकॉग्निशन लेट मिला, मतलब एक पहचान जो थी उन्हें लेट मिली, बट उनको क्या हुआ कि उनको आगे बहुत अच्छा पहचान मिली, बहुत सारे अवार्ड्स मिले. जॉय गोविंदा लो गोल्ड मेडल, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले बाय द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. ठीक है, बंगाल की सोसाइटी से उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले. ही रिसीव्ड ऑनरेरी डॉक्टरेट्स फ्रॉम द अलीगढ़ म्यूजियम यूनिवर्सिटी. ठीक है, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिले, आंध्र यूनिवर्सिटी से. 1967 में वो एक नॉन ब्रिटिश सिटीजन टू रिसीव द गोल्ड मेडल ऑफ ब्रिटिश ऑर्थोलॉजी यूनियन. 1967 में उन्हें नॉन ब्रिटिश सिटीजन बना दिया गया और उन्हें फिर से एक गोल्ड मेडल मिला. सलीम अलीज राइटिंग्स एंड अवार्ड्स ब्रॉट हिम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. उसकी जो राइटिंग्स थी और उसके जो अवार्ड्स थे उससे उसे बहुत पैसा मिला. बट ही केप्ट वेरी लिटिल फॉर हिमसेल्फ. वो अपने लिए कुछ रखना ही नहीं चाहता था, हमेशा वो बांट देता था. किसको? स्कॉलरशिप, एज अ स्कॉलरशिप दे दिया, एज अ ग्रांट दे दिया स्टूडेंट्स को, जो नीडेड स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर दी. वो हेल्प करने में ज़्यादा बिलीव करता था बजाय कि अपने लिए पैसा इकट्ठा करके अपने लिए संपत्ति जोड़ने में. नहीं, वो बांटने में ज़्यादा बिलीव करता था. Salim Ali donated his 1976 Paul Getty Wildlife Conservation Prize worth $50,000 to a conservation research fund at BNHS. ठीक है, उसने उसको एक प्राइज मिला था, कितने का? 50,000 का. तो उसने क्या करा, उस 50,000 के प्राइस को BNHS में रिसर्च में एज द डोनेशन दे दिया. राइटिंग लेटर्स वॉज वन ऑफ द सलीम अलीज पैशन. उसको लेटर्स लिखने का भी बहुत शौक था. द सेटिंग अप ऑफ द भरतपुर एंड करनाल बर्ड सेंचुरीज, द डिसीजन नॉट टू बी डिस्ट्रॉयज केरला साइलेंट वैली फॉर द सेक ऑफ अ पावर प्रोजेक्ट. ठीक है, उसको बहुत शौक था तो उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया. एंड मैनी अदर सिमिलर मेजर्स वर ड्यू टू हिज पावरफुल लेटर्स.
टू द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे कि आगे जिससे वो वाइल्ड लाइफ के लिए एक कुछ रिकॉग्निशन, कोई इंस्टीट्यूट बना पाए, इसके लिए उसने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर्स लिखे और बहुत सारे फॉरेस्ट के ऑफिशियल जो पीपल होते हैं, एक हाई लेवल पे बैठे होते हैं, उनको भी लेटर्स लिखे कि उसकी रिक्वेस्ट मानी जाए। सलीम अली ऑल्सो लव्ड मोटर बाइक्स, उसको मोटर बाइक का भी बहुत शौक था। इन 1950 ही शिफ्ट हिज मैसिव सनबीम 500cc मोटर बाइक टू स्वीडन। स्वीडन में उसने वो बाइक ट्रांसफर कर दी विद हिज लगेज, अपने लगेज के साथ। ही रोड इनटू एन ऑर्थोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस इन हिज बाइक। उसने क्या करा, वो एक ऑर्थोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में गया, जैसे कि जहाँ पर पक्षी विज्ञान के बारे में बताया जाता है। ऑर्थोलॉजिकल सेंटर वो बनाना चाहता था, मतलब वो सारा उसका जो विश्वास था, उसको जो शौक था, ऑर्थोलॉजी का ही था। तो ऑर्थोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में गया अपनी बाइक पे, ठीक है। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ही रोड थ्रू यूरोप मीटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड वॉचिंग बर्ड्स। उसके बाद उसने क्या करा, उसको तो शौक तो एक ही था, तो उसके बाद वो क्या करता था, जब भी वो फ्री हो जाता था तो वो बर्ड्स को वॉच करने में अपना टाइम स्पेंड करता था। इन फ्रांस सलीम अली वॉज इंजर्ड, फिर बट बहुत अनफॉर्चुनेटली वो एक एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है। स्पीडिंग ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो हॉस्पिटल में था तो सबसे पहले उसको क्या ध्यान आया कि मैं पहले बाइक रिपेयर करा लूं। उसको अपनी बाइक से इतना प्यार, इतना लगाव था कि बैंडेज बंधे बंधे उसने अपनी बाइक को सबसे पहले रिपेयर कराया, चाहे लंच लेट किया पर अपनी बाइक रिपेयर कराई। Until he was 87 years old, जब तक वो 87 years का हुआ, सलीम अली कंडक्टेड मेजर एक्सपेंडिशन। उसने इतने सारे बड़े बड़े काम कर दिए थे जब तक वो कितने साल का हुआ, 87 years का। इन 1983 he spent 4 weeks in the exclusively beautiful नामदापा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वहां पर उसने टाइम स्पेंड किया। 2 years later he was planning to go to Himalayas in search of the mountain quail। 2 साल बाद उसने सोचा कि मैं हिमालयाज में जाऊंगा और वहां पर रिसर्च करूंगा, ठीक है। बट सडनली फेल इल, बट अनफॉर्चुनेटली वो बीमार पड़ गया और वो नहीं जा पाया। He used the time to finish one more book। इतने उन्होंने एक और बुक लिखी, क्या नेम था उसका, The Fall of a Sparrow, his delightful autobiography, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अपने बारे में स्टडी, ठीक है, स्टडी या राइटिंग ऑफ योर ओन लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में लिखना, ठीक है। वन ऑफ द सलीम अलीज लास्ट विशेज वॉज टू सेट अप एन ऑर्थोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। और वो क्या था, उसकी लास्ट विश क्या थी, वो चाहता था कि मुंबई में एक सेंटर बनाए वो ऑर्थोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जहां पर बच्चे स्टडी कर सके, जिनको पक्षी विज्ञान का शौक है वो उसके बारे में स्टडी कर सके। इन अप्रैल 1987 आफ्टर हिज इलनेस, बीमार पड़ने के बाद पता चला, डायग्नोस्ड हुआ, डायग्नोस का मतलब कंफर्म हो गया, मेडिकली डिक्लेयर्ड हो गया कि वो जो है वो उसको कैंसर है। ही फ्लू टू दिल्ली टू कन्विंस प्राइम मिनिस्टर अबाउट द नीडेड। उसके बाद उसने क्या सोचा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करूंगा, जो कि उसका मन था, ठीक है। As a cancer, he flew to Delhi to convince the Prime Minister about the need of the institute. Hospitalized on landing, he kept insisting on going to the seminar until the Prime Minister visited him. जब तक प्राइम मिनिस्टर उसे देखेंगे, मिलेंगे, वो तब तक अपना जो प्रयास है उसने जारी रखा कि मैं ये काम करके ही रहूंगा। उसने पूरा सपोर्ट करा। 2 months later, 2 साल बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। सलीम अली died in 1990. The Salim Ali Center for Ornithological and Natural History was established in Coimbatore. क्या हुआ, बहुत अच्छी बात ये हुई कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनका आखिरी सपना था कि वो ये चाहते थे कि सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजिकल एंड नेचुरल हिस्ट्री एस्टेब्लिश हो कोयम्बटूर में, वो हो पाया। और वो इस चीज़ से उनको बहुत अच्छा लगा होगा कि चलो मेरे डेथ के बाद ही एटलीस्ट मेरा सपना तो पूरा हुआ। तो हमने क्या देखा कि उन्होंने कितनी डेडिकेशन से, कितने अच्छे से उन्होंने अपने सपने के पीछे भागते रहे। इतनी परेशानियां होने के बावजूद उनके घर में कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इतना कुछ है, तब भी वो आगे उसके अपने एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए या अपने पक्षी विज्ञान की स्टडी करने के लिए वो इतने तत्पर थे, इतने कीन थे कि उन्होंने वो पा के ही माने,
ठीक है। तो हमें भी अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल वो होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, ताकि हम अपना लक्ष्य पा सके, और उसके लिए हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, द चैप्टर इज एंड फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Okay, so today we'll move forward for our next class, the fourth chapter, the Ravan and the Fox. Okay, this is a poem. Okay, this is a rhyme, this is a poem. So we'll start here. We will read about some Ravan and the Fox. एक fox है, एक Ravan है इस rhyme में, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि आज तक हमने फॉक्स की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, तो उसमें हमने यही देखा है कि फॉक्स बहुत क्लेवर होती है, ठीक है, हमेशा क्लेवर होती है। तो उससे ये यहाँ भी हमें यही देखने को मिलेगा कि ही इज सो क्लेवर। Okay, Mr. Raven was perched upon a limb, and the Renard the fox looked up at him. For the Raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Okay, so we'll read here Mr. Raven. Raven कौन होता है? Raven is like a crow. Crow से थोड़ा सा बड़ा होता है ये रहा। तो Raven क्या होता है? Raven की जो beak, जो उसकी चोंच होती है वो थोड़ी सी उससे बड़ी होती है, और वो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है क्रो से। वो क्रो की तरह ही होता है, सिमिलर टू क्रो, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल क्रो की तरह है, पर उससे थोड़ा सा वैसे डिफरेंट होता है एक्चुअल में। द रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। कहाँ बैठा था रेवन? सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक एंड ऑफ द ट्री, ट्री के एंड में वो बैठा हुआ था ऊपर। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और जो रेनार्ड थी फॉक्स, वो उसको देख रही थी, वॉच कर रही थी, कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रही थी। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। उसकी बीक में क्या था? एक बड़ा सा कोई चीज थी खाने की। अ पीस ऑफ चीज या अ पीस ऑफ चपाती, रोटी, अ मॉर्सल। मॉर्सल मतलब लाइक काइंड ऑफ a piece of bread, you can say. A morsel the fox would go far to seek. वो उसको देख रही थी ध्यान से कि कब ये टुकड़ा मुझे मिल जाएगा। वो इतने ध्यान से, इतनी गहनता से उसे देख रही थी कि ये मैं खाने चाहती हूँ, ये मुझे चाहिए ये। Mr. Ravan was perched upon a limb, and Renard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. वो चाहती थी कि वो उसे मिल जाए, ठीक है। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन, वो एक बैठा था, आराम से अपना खाने में लगा पड़ा था, पर उसको लग रहा था कि ये जो इसकी चोंच में दबा हुआ है ना, बस ये मुझे मिल जाए कैसे ही। उसको इतनी भूख लग रही थी, शी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, कि मुझे ये कैसे ही मिल जाए। Said the fox in admiring tone. फॉक्स ने बोला, क्या बोला? एडमायरिंग टोन में। एडमायरिंग टोन मीन्स एकदम अच्छी आवाज में, एकदम प्रभावित करने वाली आवाज में उसने बोला। क्या बोला? सर रेवन। क्या बुलाया उसने रेवन को? सर रेवन। मतलब वो उसकी यहाँ पर प्रशंसा करने वाली है। सर रेवन। Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. क्या कहा उसने फॉक्स ने एडमायरिंग टोन में? कि सर रेवन आप बहुत हैंडसम हो, बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो। हैंडसम वी यूज फॉर द बॉयज ना। सच फेदर्स, इतने प्यारे आपके फेदर्स हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना गाने लगो तो हमारी जो सारी बर्ड्स हैं, सारे बर्ड्स आपकी क्या हो जाएंगे? दीवानी हो जाएंगे। आपके सारे बर्ड्स दीवाने हो जाएंगे और आपको क्या कहेंगे? सब राजा कहेंगे, किंग कहेंगे। ओहो भाई, इतनी तारीफ करी उसने, फॉक्स ने इतनी तारीफ करी। इस तारीफ के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर थी। आप बताइए क्या वजह थी? गेस। Said the fox in admiring tone, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. इस जंगल के सारे बर्ड्स आपको क्या बुलाएंगे? किंग बुलाएंगे। अगर आप गाना गाओ तो। आपके इतने प्यारे फेदर्स हैं, आप इतने हैंडसम हो।
द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, अब रेवन की बारी आई. The raven who did not see the joke forgot that his voice was a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had spied. ओके सर, जो रेवन था उसने क्या कहा, उसने जोक तो देखा नहीं, उसने ये तो देखा नहीं कि ये मजाक कर रही है, मतलब उसे मजाक समझ ही नहीं आया. वो पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठा हुआ था, कौन से बारे में सोच रहा था कि उसको वो मजाक समझ नहीं आया, और वो भूल गया कि उसकी वॉइस कैसी है, कर्कश है. भाई क्रो की वॉइस कहाँ से मीठी हो सकती है, वो कोयल थोड़ी है. उसकी वॉइस कैसी थी, क्रैक 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 थी. ठीक है. ही ओपनड हिज बीक, जैसे ही उसने अपनी बीक खोली, फुलिश प्राइड में, फुलिश प्राइड मतलब इतनी बड़ी मूर्खता उसने करी, इतनी बड़ी मूर्खता उसने करी, किस लिए करी, प्राइड में. प्राइड मीन्स घमंड था उसे. किस चीज का घमंड था, उसे लग रहा था कि हाँ मैं जंगल का राजा बनने लायक हूँ. इतना ज्यादा प्राइड नहीं होना चाहिए इंसान में कि वो भूल जाए, वो अपने करंट चीजों को भूल जाए कि वो है क्या. इतना प्राइड नहीं होना चाहिए. तो उसने अपने फुलिश प्राइड में वो भूल गया कि उसकी वॉइस कितनी कर्कश है, और उसने अपना माउथ ओपन कर लिया. एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड स्पाइड. जो फॉक्स उस पे कब से स्पाइड, नजर बनाए बैठी थी, नजर गड़ाई बैठी थी कि ये टुकड़ा मुझे मिल जाए मॉर्सल, और वो उसके मुंह से गिर गया खोलते ही, जैसे उसने सिंग करने की कोशिश करी. देखो उसने कितनी बेवकूफी करी. हा हा सेड द फॉक्स. उसके बाद क्या हुआ, फॉक्स उस पे हंसने लगी. हा हा सेड द फॉक्स, एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू द फ्लैटरी. वैनिटी सर इज अ हॉरिड वाइज. आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइज. उसने क्या कहा, जो वो थी हंसने लगी, उस पे हंसी, खूब हंसी. कैसे हंसी, उसने कहा तुमने नहीं सुना, तुमने फ्लैटरी नहीं सुना, तुमने ये नहीं देखा कि मैं तुम्हें कैसे मक्खन लगा रही हूँ, हैं बटरिंग कर रही हूँ मैं, तुम्हें ये पता ही नहीं चला कि मैं कुछ सीरियस नहीं हूँ, मैं तुम्हें बटरिंग करके, तुम्हें मजाक करके, तुम्हें पागल बनाया मैंने, हाँ, और तुमने मेरी बात पे तुम सीरियस हो गए. तुम्हारे अंदर इतना प्राइड था. ये क्या होता है, वैनिटी मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग सो मच प्राइड. स्टेट of having so much pride. इतना तुम्हारे अंदर घमंड था कि तुम बिल्कुल फ्लैट हो गए मेरी बात पे. तुमने ये सोचा ही नहीं कि मैं क्या कह रही हूं. तुम्हारी वॉइस इतनी वैसी है, हार्श है, तुम्हारी वॉइस ऐसे कैसे हो सकती है, हैं? तुमने कैसे सोच लिया, तो तुम इतना ज्यादा कैसे वो हो गए, तुम इतने अनप्लीजेंट और तुम्हारी इतनी अनकाइंड वॉइस है. और तुमने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें कह रही हूं तो तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, और तुम भूल गए कि मैं मजाक कर रही हूं. मजाक भी कर सकता है कोई. तुम अपने घमंड में इतना खो गए कि राजा बनने के चक्कर में तुमने क्या करा, तुमने कितनी बेवकूफी करी. तुमने अपना जो पीस था मॉर्सल का वो भी नीचे गिरा दिया. अब वो मेरा हो गया है और तुम मजे लो, तुम अपने घमंड में बैठे रहो. ठीक है. तो ये एक लेसन है. क्या लेसन है, कि हमें कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए. हमें कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए. हमें सोचना चाहिए कि कोई हमारा इतना ज्यादा वो कर रहा है, इतना ज्यादा तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब वो झूठ भी बोल सकता है, वो हमें मक्खन लगा रहा है, उसको हमसे कुछ काम है जरूर. ठीक है. तो हमें बहुत अवेयर रहना चाहिए अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों से जो हमारे से मीठी मीठी बातें करते हैं और हमें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, और फंसा के फिर हमारा फायदा उठाते हैं, हमें यूज करते हैं कामों के लिए. तो हमें इन सब चीजों से अवेयर रहना चाहिए. ओके. इस स्टोरी से, इस पोम से, इस राइम से हमें यही सीखने को मिला है कि फॉक्स की तरह ऐसे ही चालाक लोग हमारी सोसाइटी में भी घूम रहे हैं. तो हमें उनसे क्या करना है, अवेयर रहना है. बी अवेयर. ओके. द पोम एंड नाउ we'll see you in the next class with the 5th chapter of your English literature book. Okay, thank you guys. Bye bye. Have a nice day.